why do they need training? You are saying it is for enhancing their skills. Why do they need enhancing skills? You say for their work, but what kind of work? So to reduce the errors. Why do people need training? So to know their strengths and weakness or to. So एक आ गया develop skills. चलो ठीक है और why do people need training? क्यों चाहिए training? Eh? To perform. Okay. To perform. Okay. To reduce errors. Okay. To reduce errors. Okay. Sorry? Resource utilization. Okay. Resource utilization, and you said optimum. Okay. Why do people need training? To meet job requirements. To meet job requirements. Meet job requirements. Okay. Why? What else? Why do people need training? So to assess oneself, what they can To achieve organizational goals. To achieve organizational goals. Okay, very good. Organizational goals. उसको achieve करना है. Okay. Prepare. Better conduct of business. Okay. Better conduct of business. और सोचो. Why do people need training? To increase productivity of people. प्रोडक्टिविटी. ठीक है, बहुत अच्छा शब्द है प्रोडक्टिविटी. Why do people need training? बोलो. Why do people need training? There are many reasons. We have already given. To work on their weakness. Okay. ये अलग तरीके से प्रेजेंट करने वाली बहुत सारी चीजें हैं, बट ठीक है. टू वर्क ऑन देयर वीक एरियाज. ठीक है. मेंटेन वर्क एनवायरनमेंट. हाँ, मेंटेन वर्क एनवायरनमेंट मीन्स आपका जो एम्बियंस रहता है या फिर कोई भी आपका वर्क का एनवायरनमेंट रहता है, मतलब इन डिसिप्लिन वर्क कल्चर. ओके. वर्क कल्चर. चलो ये बात भी सही है. टू इम्प्रूव वर्क कल्चर. व्हाट एल्स? वेरी गुड. आ रहा है ना? कॉम्पीट करना. वेरी गुड. ये भी अच्छी बात है. और it can be job analysis. ओके. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. आ गया. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आ गया ना. न्यू टेक्नोलॉजी. New technology. So that's also good. New technology. One thing I want to add, which you have missed completely. Aware rules and policies. That's okay. Motivation. Training is one of the biggest motivator, isn't it? So employee motivation. You see, it is used for so many purposes. And when you say develop skills, which skills? Performance improvement, which performance? Reduce errors, which errors? Resource utilization, who is the resource and what is the utilization required? Meet job requirements, what are those requirements? Achieve organizational goals, what are those goals? Who has identified those goals? Better conduct of business, what is business conduct? Productivity, what is the definition of productivity? Which productivity are we talking about? To work on your weakness, what are the weaknesses? Who has identified the weaknesses? Then you say work culture, what is that work culture? Who is he going to compete? What are the new technologies? And who has identified the triggers of employee motivation? Now these are fundamental questions. So organizations today are struggling with all this. एक important aspect है जो आपको ध्यान रखना चाहिए.
हमारा जो बिजनेस है ना, इन लास्ट फ्यू इयर्स जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है बाहर, एक लीनियर बिजनेस मॉडल की तरह चलता था। इन लास्ट फ्यू इयर्स द बिजनेस मॉडल linearity has changed between revenue and headcount, यानी ह्यूमन रिसोर्स HR and revenue. यानी if company was growing say from $100 billion to $200 billion to $300 million to $400 million, it is the growth, right? Sales growth. You're right. Suppose you open your business. आपने अपना कोई बिजनेस शुरू किया, आपका टारगेट क्या होगा कि मेरा बिजनेस ग्रो करे, राइट? Every business wants to grow, but with every growth, there is a growth in manpower. If you are growing, if you are having $100 million business, you may be having say 100 employees. For example, if you grow from 100 to $200 million, you will have 200 employees, right? If you go to $300 million business, the business is doubling, your employee number will also double. And if you go to $400 million, so you may go to 400. That is the conventional business model that has been happening in laws. It's called linearity in business. So business is linear between headcount and revenue. But the technology has completely changed. This linear business model has become a non-linear business model. Now, if revenue is 400 or 300 or 200 or 100, and we were having say 400 employees when we look at this, but in the new emerging scenario, even if you are 400 going from 300 to 400, 200 to 300, there is no guarantee that you will go from 400. You may have only 300 employees. You may have for 300 employees not 300 people but 200 people. So 200 people and 300 revenue, or 400 people or 300 people and 400 revenue, which means जो पहले लीनियर था ना, जो पहले लीनियर था वो अब क्या है, वो नॉन लीनियर बनेगा। अब उसमें जो सेम रेट से जो पहले ग्रो करता था, जरूरी नहीं है कि हेडकाउंट भी सेम रेट से ग्रो करेगा। व्हाट डज इट मीन? इट मींस जो प्रोडक्टिविटी है, यानी अगर मैं हम प्रोडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं? लेबर प्लस इनपुट कॉस्ट है ना। इनपुट कॉस्ट में क्या दिया जाता है? लेबर एंड मशीन प्लस टेक्नोलॉजी। ये लेबर कॉस्ट देगी, ये आपका प्रोडक्टिविटी डिसाइड करेगी। मान लीजिए आज आपका लेबर प्लस मशीन प्लस टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू से 500 रुपीज, और आपकी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन नॉट प्रोडक्टिविटी है से 500 के, आप पर पर्सन कितना बना रहे हो? पर पर्सन कितना है? 1 kg। ना अगर मुझे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है तो मैं क्या करूंगा? मुझे अपने इनपुट कॉस्ट में कमी करनी पड़ेगी। अब मैं टेक्नोलॉजी या तो चेंज करूंगा, और टेक्नोलॉजी चेंज करूंगा तो मेरी लेबर की स्किल्स चेंज हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि जो पहले 500 लोग मैं करता था, 500 रुपया खर्चता था, जिसमें मान लीजिए मेरी लेबर लगती थी 100, अब मैं इस लेबर को लेके आता हूं 50 की, क्योंकि मैंने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया और लेबर पे रिडक्शन किया। तो मेरा जो कॉस्ट है वो आज भी 500 रुपए है, लेकिन मेरी जो प्रोडक्शन है वो 500 है, लेकिन वो प्रोडक्शन मेरी कहां चली गई? 700। तो मेरा पर पर्सन 1 kg रहेगा, बढ़ेगा? बढ़ेगा। सो देयर इज ग्रेटर पॉसिबिलिटी टू बिकम 1.15। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब है ये जो 0.15 विद द सेम इनपुट कॉस्ट, ये मेरी प्रोडक्टिविटी।
तो ये प्रोडक्टिविटी आई कहां से? या तो टेक्नोलॉजी में कोई परिवर्तन किया और अपने स्किल सेट्स में परिवर्तन किया और लेसर लोग रखे। ये जो आप ये जो डायग्राम देते हो, ये लीनियर बिजनेस मॉडल टू ए नॉन लीनियर बिजनेस मॉडल, ये आज सबसे बड़ी चैलेंज है बिजनेस में। और इसका इम्पैक्ट कहां पड़ रहा है? इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है इन रिसोर्सेज के ऊपर, कि मैं बिजनेस तो ग्रो कर रहा हूं, लेकिन जो मैं पहले रिसोर्स हायर कर रहा था, अब मैं वो लेसर हायर कर रहा हूं, लेकिन विद डिफरेंट स्किल्स। तो आज हमारे सामने क्वेश्चन आता है, लोग कहते हैं जॉब नहीं मिल रही, लेकिन एम्प्लॉयर के पास जाते हो कहते हैं जॉब तो है, तो लोग नहीं मिल रहे। तो प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम है कि जो लोग मिल रहे हैं उनके पास कोई स्किल्स नहीं है, और जिन स्किल्स की डिमांड है उसकी ट्रेनिंग नहीं हो रही। तो यहां पे मिसमैच आता है। तो एक लर्निंग और ट्रेनिंग प्रोफेशनल, मान लीजिए कल आप किसी कंपनी में जाओगे, आपके सामने ये चैलेंज होगी, मेरी कंपनी को प्रोडक्टिव रहना है, मेरी कंपनी को कॉम्पिटिटिव रहना है, मेरी कंपनी को परफॉर्म हाई करना है, एरर्स कम करने हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करनी है। तो मैं एज ए ट्रेनिंग मैनेजर मैं क्या करूं? तो ये फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं आज किसी भी ट्रेनिंग प्रोफेशनल के लिए, ट्रेनिंग मैनेजर्स जो होते हैं कंपनीज के लिए, उनके सामने फंडामेंटल क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास ट्रेनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और द ऑर्गेनाइजेशन, मेरा पहला टारगेट क्या है? तो मेरा पहला टारगेट है कि मैं ये समझूं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन की क्या, व्हाट डू आई नीड टू नो, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन। हमने यहाँ कहा कि व्हाई डू आई नीड टू डू ए ट्रेनिंग एनालिसिस, मुझे क्यों करना है? क्योंकि मुझे समझना है मेरी कंपनी का गोल क्या है और उस गोल को मैं कैसे हेल्प करूं अचीव करने में। So for me it is important to do training need analysis because I have to help my organization to grow, to stay competitive, to sustain in the long run. And for that I need to understand what my human resources will require to help organizations stay competitive, stay relevant. Right? So that is why I need to do training analysis, training need analysis. Then the question comes, how do you conduct a training need analysis? Now we come to it. But first, let me ask you, do you understand why we do need to do training need analysis? Why is training required? What is training? Do you understand that? Can anyone clarify? Can anyone summarize? Quickly. Hindi, English, कैसे भी करो. So training is basically we have to identify our basic. We have to identify the pros and cons, or to perform, or to skills which is required in the business in the business environment, and we have to we have to it's like Okay, go ahead. we have to fetch details from a particular person. What are their skills, how they can perform, and how they can help the business environment by in their growth. Yes. Right. So, very true. So, I have my reason for doing this entire training need analysis is to keep my organization relevant in the market, keep my organization growing, and that growth is sustainable. And it is flexible to change. Why? Because market is changing, customer needs are changing, requirements are changing, business working environment is changing, laws are changing, world is becoming a small hub. The business transactions are governed today by technology, so technology is changing. So there's a lot of change happening. And organizations को अगर relevant रहना है, grow करते रहना है, sustainable रहना है, flexible रहना है, और साथ साथ में environment
friendly रहना है. Environment is becoming one of the most important aspects of doing business today. That we are compliant to the laws of environment. So it is very important for a training professional to keep all these things in mind and help organizations stay. And for this, I need to do training need analysis of the Stand in a organization. competitive. Now, for this, how do I begin as a training professional? ये क्या करना चाहिए? So first we have to analyze the job or the business. उससे पहले सबसे पहले है scan the business environment. What is scan the business environment? मैंने जब यूनिवर्सिटी ज्वाइन की मैं नया था, I was new and I was asked to go and make the university. I had never made any university. Neither I was a professor, neither I was a teacher. What was the first thing for me to do? Scan the skill ecosystem environment. पहले मुझे तो समझ में आए what is happening in the skill ecosystem. So if you join tomorrow a company, maybe you join a pharmaceutical company, maybe an automobile company, maybe an electronics company, maybe an agriculture company. You as a training professional must understand the environment of that sector. Suppose you have joined the automobile sector, you must understand what is happening in the world of automobile. What kind of changes are happening? Now, automobile in last 10 years has gone through a significant change. Can you suggest क्या changes आई हैं automobile sector में? From? Artificial intelligence. That's true, AI, but we moved from a petrol vehicle, a diesel vehicle, to a CNG vehicle, to an electric vehicle, and now to a hybrid vehicle, then to hydrogen vehicle. New things are coming up, no? Yes. Now, all these changes in the automobile sector, will it have impact on the business? Yes, sir. The way we will do business? No, अगर मुझे मालूम ही नहीं बाहर क्या हो रहा है और मैं लगा हूँ अपने पेट्रोल और डीजल के टेक्नोलॉजी में लोगों को ट्रेन करने में, what will happen? What happened to Ambassador? What happened to Fiat? What happened to GCG TV, Western TV? And what happened to Nokia? Because, so for a training professional, it's important to understand where my sector is, मैं किस सेक्टर में ऑपरेट कर रहा हूँ और उस सेक्टर में क्या हो रहा है, क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, क्या बिजनेस चेंजेस आ रही हैं, क्या फाइनेंशियल चेंजेस आ रही हैं, क्या ह्यूमन रिसोर्स चेंजेस आ रही हैं, किस तरह के नीड स्किल्स कॉम्पिटेंसीज डिमांड में है. और आपको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? समझ गए? सो मुझे ये एनवायरनमेंट को स्कैन करना है एज ए प्रोफेशनल. मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो मैं एज ए प्रोफेशनल एक्सपीरियंस करता हूँ. वो आई एम नॉट गिविंग एनीथिंग बुक, मैं बुक से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो मुझे मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ. तो स्कैन करना मत. तो बिफोर आई गो टू माई ऑर्गेनाइजेशन, before I start understanding my organization, I need to understand where my organization is operating. किस environment में वो operate कर रही है. उस मेरी कंपनी, मान लीजिए मैं किसी भी कंपनी में ज्वाइन करता हूँ, वो किस सेक्टर में ऑपरेट कर रही है, वो किन लॉज में ऑपरेट कर रही है, वो किस कंपटीशन में ऑपरेट कर रही है, और वो किस टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क में ऑपरेट कर रही है. एज ए पर्सन, ट्रेनिंग प्रोफेशनल, I have to understand these aspects. मुझे ये समझ में, अगर मैं ये नहीं समझूंगा, I cannot become an effective training manager in the organization. और आजकल जो है, the word training managers is getting changed. इसको parallelly use करते हैं training managers को और organizational development manager, organizational effectiveness manager, leadership development professional, L&D. So new terms and the terminologies are being used. But ultimately, organizational development or organizational effectiveness is meant to drive training. Right?
तो जो कंसेप्ट पहले होता था ट्रेनिंग का, लाइव क्लास में बिठा दिया, लोगों को पढ़ा दिया और चले गए, ट्रेनिंग हो गई ना. The concept of training is completely changed. So is it clear to you? Yes, sir. Do you have any question on this? कोई और question इस पे? So how do you conduct a training need analysis? How do you conduct a training need? But any idea how you conduct a training now that you have joined a company, and now your company boss tells you, hello, I want you to do a training need analysis for our operation. Okay? Now tell me, what will you do? What would you do first? Yes. सोचो ना यार, कॉमन सेंस है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. Any question, yes? आप इमेजिन करो, आपने अपनी कंपनी बनाई और ये कंपनी जो है ये गाड़ियां बनाई, स्कूटर बनाई या कुछ भी बनाई. अब आप मालिक हो, इस कंपनी के ओनर हो, सीईओ हो. आपने एक एचआर का हेड रखा और उसको बोला, यार मुझे ना इस साल तू ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करके दे मेरी कंपनी. आपको क्या लगता है पहले उसे क्या करना चाहिए? आप सीईओ, इमेजिन करो आपको कंपनी ग्रो करनी है. व्हाट विल यू डू? फर्स्ट थिंग यू एक्सपेक्ट टू डू. उनके बीच में कोई इसको देख लेगा कहाँ पे वीक है वो. सीधा बीच पे क्यों आएंगे? भाई मैं तो पहले चाहूंगा, सपोज इफ आई एम्प्लॉय यू एज माय एचआर और ट्रेनिंग मैनेजर, आई विल आस्क यू, क्या नाम बेटा तेरा? हाँ? रुचि. रुचि, I want you to first understand our business. We have opened a scooter manufacturing company. Do you understand scooter manufacturing? No. So how will you understand my problems? So the first thing is understand business. Now, why do I understand business? Because अंडरस्टैंडिंग बिजनेस को क्यों अंडरस्टैंड करना है, क्या समझना है बिजनेस. मैं चाहता हूँ तुम मेरे बिजनेस को समझो. क्या समझोगे बिजनेस? बिजनेस को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो? पहले बिजनेस के गोल समझो, ऑब्जेक्टिव्स को समझो, हम करना क्या चाहते हैं. भाई मेरे को ना 5 साल के अंदर इस कंपनी को 500 करोड़ की कंपनी बनाना है. इस साल मुझे कम से कम 100 करोड़ का बिजनेस करना है. मुझे एक्सपोर्ट करना है 20%. मुझे ये 4 टेक्नोलॉजीज के थ्रू इस कंपनी को आगे बढ़ाना है. आप समझे मेरे गोल्स क्या है? मैं सर के साथ बैठूंगी, सर पहले मुझे आप बताओ, टॉप ऑफ द कंपनी, आप बताओ जी आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप करना क्या चाहते हैं. अगर यही क्लियर नहीं होगा, हाउ विल यू स्टार्ट ऑपरेटिंग एंड क्रिएटिंग योर ट्रेनिंग प्लान्स, है ना. सो understanding the broader goals of business. Broader. यानी अगर मेरा बॉस यहाँ है, यहाँ बॉस बैठा है, सीईओ बैठा है, तो सबसे पहले तो मेरे सीईओ को पढ़ा, फिर उसके नीचे उसकी टीम होगी, फिर उसके नीचे उनकी टीम होगी, फिर उसके नीचे उनकी टीम होगी. स्ट्रक्चर होता है ना ऐसे, ऑर्ग स्ट्रक्चर. सो आई हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. I will have to understand the needs of the partners. I will have to understand the needs of the individuals, groups. And then I will have to understand the need of the individuals. मैं individuals की भी need समझूंगा, मैं groups की भी need समझूंगा, departments की भी need समझूंगा, boss की भी need समझूंगा. I will also understand competition. I will also understand technology. मैं इसको भी स्टडी करूंगा. मैं जब इनसे बातचीत करूंगा तो मैं उसको भी बाहर देखूंगा, मेरे कॉम्पिटिटर कौन है, टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, उनकी ग्रोथ कैसी है. मैं बाहर के बेस्ट प्रैक्टिसेस भी स्टडी करूंगा. ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, कल इंटरव्यू में पूछ सकता है, कोई एग्जाम में आएंगे कि आप कैसे करोगे इसका. सो सबसे पहले इसमें हम बोलते हैं एक मॉडल है, इसको बोलते हैं एडी मॉडल.
AD model is the most commonly used model. इसका मतलब है एनालाइज, डिजाइन, डेवलप, इंप्लीमेंट। तो एनालाइज क्या करना है, मुझे ये सारा एनालाइज करना है। अगर मैं इसी एनालाइज को देखूं तो मैं देखूंगा ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस है, ऑपरेशनल एनालिसिस है और पर्सनल एनालिसिस। यानी टॉप लेवल पे एनालिसिस चल रहा है, मिड लेवल पे एनालिसिस चल रहा है और ग्राउंड लेवल पे एनालिसिस चल रहा है। तो आई हैव टू डू दिस एनालिसिस। नाउ एनालिसिस कब होगा, जब डेटा होगा, जब इंफॉर्मेशन होगी। सो आई हैव टू गैदर इंफॉर्मेशन, आई हैव टू गैदर। अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जाऊंगा तो क्या गैदर करूंगा, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी क्या है। मैं बॉस को पूछूंगा, बॉस क्या प्लान है आपका 5 साल का, पूछूंगा ना। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगा कि स्ट्रेटजी क्या है, कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, रिसोर्सेज क्या लगेंगे इसमें, बॉस का अंडरस्टैंडिंग क्या है, किस तरह का कल्चर क्रिएट करना है या कर चुके हैं। मैं अभी आया हूँ, कंपनी बहुत पुरानी है, कैसा कल्चर है, ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जाए। और इसमें कौन लोग होंगे, इसमें होंगे जो मुझे बताएंगे, सीईओ होगा, फंक्शनल हेड्स होंगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग, सेल्स, एचआर, ऑपरेशन, फाइनेंस, मर्चेंडाइज, परचेज, ये सारे हेड्स होंगे। मैं इन सब के पास जाके पूछूं, राइट। सो फ्रॉम gathering of information about the organizational vision, strategy, core objectives, what kind of human resource we need, I will go and start gathering information. So information gathering का भी अपना एक process है, मैं उसको अभी आऊंगा, but I will gather information. Similarly, I will gather information at the operational level कि जो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन अब कर रही है, नीचे टीम्स काम कर रही हैं, डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, हाउ आर दे डूइंग, मैं उनसे भी गैदर करूंगा इंफॉर्मेशन। और फिर मैं पर्सनल लेवल पर जाऊंगा, मैं एक्चुअल लोग देखूंगा वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर राज नेहरू को बनाया है हमने वाइस चांसलर, तो राज नेहरू से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है कि भाई 3 साल के अंदर यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाना चाहिए, प्रोग्राम्स आ जाने चाहिए, इतने लोग रिक्रूट होने चाहिए, इतना प्लान लेआउट, फंडिंग लेआउट होना चाहिए, ये उसका टारगेट है, ये उसके परफॉर्मेंस है। मैं ये देखूंगा कि क्या वो परफॉर्म कैसे कर रहा है वहां, तो उसके लिए मैं क्या क्वेश्चंस बनाऊंगा और कैसे गैदर करूंगा उस इंफॉर्मेशन। यहां तक क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. एनी क्वेश्चंस हियर? कोई क्वेश्चन? अब बता, क्लियर है? चलो क्विकली बता, क्या बोला? सर आपने ट्रेनिंग एंड एनालिसिस के बारे में बताया कि जो हमें पढ़ती है क्यों पढ़ती है, उसमें आपने 3 पार्ट्स, पहले तो आपने आईडी क्लियर करा था कि एडी क्या होता है, पहले एनालाइसिस होता है, डेवलपमेंट होता है, डिस्क्रिप्शन एंड ई इवैल्यूएट होता है, एनालाइज, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट एंड इवैल्यूएट करते हैं। फिर आपने 3 पॉइंट्स को क्लैरिफाई करा कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या होता है, एंड सेकंड पॉइंट मैं अभी तक सिर्फ एनालाइज की बात कर रहा हूँ। और एनालिसिस में गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन में कहाँ से, ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ऑपरेशनल लेवल, इंडिविजुअल, ये फंडामेंटली इंपॉर्टेंट है। अब आता है सवाल कि ये जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस आप कैसे करोगे। बहुत सारे टूल्स हैं आज, अगर आप ये देखोगे बहुत सारी जो डेटा गैदरिंग इंफॉर्मेशन की टेक्नोलॉजीज आई हैं। अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो ये जो कंपनीज आप देख रहे हो ना, ये सारी कंपनीज आज की डेट में डेटा गैदरिंग टूल्स हैं। जैसे हम सर्वे मंकी बड़ा कॉमन यूज करते हैं, बट सर्वे मंकी से अब एडवांस हो गए। बहुत सारी कंपनीज आज आपको मार्केट में मिलेंगी, चाहे जोहो है, बैंडिकैम है, डॉटकॉम है, इस तरह की 50 कंपनियां हैं जो मार्केट में आज आपको टूल्स देती है, टेक्नोलॉजी देती है, और आप उसी टूल टेक्नोलॉजी को यूज करके डेटा गैदर करते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं। राइट? इज इट क्लियर?
तो इस तरह से आइडेंटिफिकेशन ऑफ गोल्स में कोई स्वॉट एनालिसिस करता है, कोई बैलेंस स्कोर कार्ड क्रिएट करता है, कोई बेंचमार्किंग एक्सपेक्ट करता है, कोई स्मार्ट क्राइटेरियाज बनाना चाहता है, केपीआईज क्रिएट करना चाहता है, स्किल मैट्रिक्स क्रिएट करना चाहता है। ये मेरी इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं, मुझे अपने गोल सेट करने हैं कि जब मैं डेटा गैदर करूंगा मुझे इस रूप में वो मिलना चाहिए, और इस रूप में मिलने के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजीज आज मार्केट में हैं जो आप रेफर कर सकते हो। कल को जब आप प्रोफेशनल बनोगे तो आपके सामने क्या क्या उस समय तक हो सकता है नई और टेक्नोलॉजी आ गई, तो उन टेक्नोलॉजीज को आज रेफर किया जाता है, और वो टेक्नोलॉजीज में क्या है, बड़ा कस्टमाइज तरीके से उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर बनाए होते हैं। तो आप उसमें सिर्फ कस्टमाइजेशन चाहिए होती है कि अच्छा वो आपके साथ बैठेंगे, ठीक है, आपको किस तरह के क्वेश्चंस ड्राइव करने हैं, आपको क्या इनपुट चाहिए, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, वो क्वेश्चन डिजाइन करके फिर वो सॉफ्टवेयर के अंदर वो सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं, वो बॉस के लिए अलग होगा, नीचे के लिए इंडिविजुअल अलग होगा, ऑपरेशन अलग होगा, ऑर्गेनाइजेशन अलग होगा। तो टेक्नोलॉजी वहां जहां टेक्नोलॉजी नहीं है, अब टेक्नोलॉजी बड़ी कंपनी में, अब आप एमएसएमई में जाओगे उसके पास नहीं होगा, तो वहां जाके आप जैसे अगर जाते हैं तो वहां पे आप सर्वे मंकीज यूज करते हैं, जहां सर्वे मंकीज यूज नहीं करते वहां एक्सेल पे काम करते हैं। So depending upon the nature and culture of the organization and the financial capabilities, you will decide and determine how and what tools I will use. But the fundamental purpose is say मुझे collect क्या करना है, और इन सबको कलेक्ट करने के लिए मैं आपको बताता हूं इन सबको कलेक्ट करने का तरीका क्या है, हाउ डू यू कलेक्ट ऑल दिस इंफॉर्मेशन। तो बेटा साहब कैसे करेंगे ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर, टेक्नोलॉजी तो एक चीज आ गई, पर हाउ कैसे करेंगे। लीडरशिप इंटरव्यूज होते हैं, यानी आप लीडर्स से मिलोगे, यहां लीडर से मिलोगे, यहां लीडर से मिलोगे, के साथ टाइम सेट करो, आप इंडिविजुअल से मिलोगे, किसी एक इंडिविजुअल को कहीं से उठा लिया, किसी रैंडमली सैंपलिंग कर ली, आप ग्रुप सेटिंग्स में जाओ, उसको बोलते हैं फोकस ग्रुप्स। भाई एचआर से 2 लोग ले लो, मार्केटिंग से 2 लोग ले लो, सेल्स से 2-3 लोग ले लो, और इनको बिठा के एक रूम में ग्रुप डिस्कशन कर लो, और वहां आप क्वेश्चंस पूछो और आंसर। फोकस ग्रुप्स हो सकते हैं। ये जो सारी है ये फेस टू फेस मीटिंग्स होती हैं, कुछ ऑनलाइन सर्वेज भी यूज करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल डेटा जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होता है, इस साल की सेल्स रिपोर्ट, इस साल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट, इस साल की प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट, इस साल की एब्सेंटिज्म रिपोर्ट, उसको रेफर किया जाता है, क्योंकि आपको डेटा चाहिए ना, आपको डेटा चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। तो डेटा इंफॉर्मेशन गैदर करने का तरीका है लोगों से मिलना फेस टू फेस, ग्रुप सेटिंग्स में जाना, सर्वेस का इस्तेमाल करना, और ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन रेलेवेंट जो अवेलेबल है उसको यूज करना। मैं क्लियर है? तो कंफ्यूजन समझ में आ रहा है? तो ये मेथड्स आप यूज करोगे, और इन मेथड से आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी। अब आपने इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, और आपका वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन, अब इसका करोगे क्या? इसका क्या करोगे? इसका करोगे आप एनालाइज। एनालाइज में क्या करोगे? भाई एनालाइज में आप क्या करोगे? आपने सबसे पहले एनालाइज करके क्या निकाला? अरे सारा इंफॉर्मेशन तो आ गया, आपने क्या निकाला सबसे पहले? पॉइंट पे हमने एनालिसिस किया, मैं निकालूंगा मेरे ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या निकल रही है, मेरे डिपार्टमेंट की नीड क्या निकल रही है, मेरे इंडिविजुअल्स की नीड क्या निकल रही है। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर नीड क्या है, डिपार्टमेंट लेवल पर नीड क्या है, इंडिविजुअल लेवल पर नीड क्या है।
और ये नीड किससे रिलेटेड है? ये नीड रिलेटेड है नॉलेज से, स्किल से, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर मुझे क्या नॉलेज चाहिए, और ये नीड किससे ड्राइव हुई? कंपटीशन से, ग्रोथ से, परफॉर्मेंस गैप से, टेक्नोलॉजिकल गैप से, है ना? जब मैंने ये सारा डेटा एनालाइज किया तो मुझे पता लगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन नीड क्या है। नीड किस तरह की? ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कहाँ करना है, कंपटीशन कहाँ जा रहा है, मैं कहाँ हूँ, मुझे अगले 5 साल कहाँ जाना है, परफॉर्मेंस गैप्स कहाँ पे हैं, चैलेंजेस कहाँ पे हैं आज की डेट, इंडिविजुअल लेवल पर चैलेंजेस कहाँ हैं। राज नेहरू को तो ये टारगेट दिया था, लेकिन राज नेहरू की टारगेट में इतना ही पूरा हुआ, तो गैप ये है, तो इंडिविजुअल गैप्स आ गई। ऑर्गेनाइजेशन ने टारगेट दिया था 500 मिलियन, लेकिन कर दिया 200 मिलियन, 300 मिलियन की गैप है, तो परफॉर्मेंस गैप्स निकालेंगे, टेक्नोलॉजिकल गैप्स निकालेंगे, तो गैप्स निकालेंगे, ठीक है ना? तो उनके आधार पर, उनकी एनालिसिस के आधार पर आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल की नॉलेज के एटीट्यूडनल गैप्स निकालोगे, डेवलपमेंटल डिपार्टमेंट लेवल पर नॉलेज के एटीट्यूड गैप्स निकालोगे, इंडिविजुअल लेवल पर आप। अब ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर जो स्ट्रैटेजिक विजन है ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी गैप्स, यानी company A wants to grow by 25% in 5 years, but it has grown only 10%. It's an organizational gap. Company A wants to make a profit of 500 million in 5 years, but it has only made 100 million. There is a gap. Company A wants to reduce its attrition by 20%, but the attrition has gone up to 30%. So that is a gap. So there could be gaps at organizational level. Then there could be gaps at department level. Department means ऑर्गेनाइजेशन ने तो ऊपर ये गोल्स रखे थे अपने, लेकिन इन गोल्स को पूरा करने के लिए मार्केटिंग में कुछ करना है, फाइनेंस में कुछ करना है, एचआर में कुछ करना है, प्रोडक्शन में कुछ करना है, सेल्स में कुछ करना है, परचेज में कुछ करना है ना, डिपार्टमेंट है ना अलग अलग। तो हर किसी का गोल होगा, तो वो गोल कहां से आता है? यहां से। भाई एचआर क्या करेगा? एचआर वही करेगा जिससे मेरा ये गोल पूरा होगा। मार्केटिंग क्या करेगा? मार्केटिंग भी वही काम करेगा जिससे ये गोल पूरा होता हो। हम सारे तो इसी गोल के लिए काम कर रहे हैं ना। यूनिवर्सिटी में हमारा गोल है कि हमें हर साल यहां से 2000 बच्चे पास आउट करके निकलने चाहिए, गोल है। और उस 2000 में से 80% बच्चे जॉब में लगने चाहिए, ये गोल है। अब अगर ये गोल यूनिवर्सिटी का है तो उसमें एकेडमिक्स डिपार्टमेंट का कोई रोल होगा, स्किल डिपार्टमेंट का कोई रोल होगा, एडमिन डिपार्टमेंट का कोई रोल होगा, सबका रोल होगा कि फीस टाइप से दी जा रही है, प्रॉपर तरीके से दी जा रही है, उनके फॉर्म भरे जा रहे हैं, उनको स्किल दिया जा रहा है, उनको मार्केट से कनेक्ट किया जा रहा है, उनको क्लास में वो चीजें पढ़ाई जा रही हैं जो मार्केट रेलिवेंट है। कल जब वो इंटरव्यू में जाएंगे वो किसी कंपनी के सामने रेडी होके सिलेक्ट हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं, उसके लिए तैयार करना है, ऑब्जेक्टिव है ना। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल से डिपार्टमेंटल गोल ऑब्जेक्टिव्स निकलेंगे, और वहीं से फिर मार्केटिंग में कितने लोग काम कर रहे हैं, हर एक का कोई सोल्यूशनिंग आर्किटेक्ट है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, कोई स्किल इंस्ट्रक्टर है, कोई एसोसिएट प्रोफेसर है, कोई फोरमैन है, हर किसी का अपना एक गोल होगा, है ना। तो ऐसे ही वो गोल नीचे इंडिविजुअल गोल बनेंगे। इज इट क्लियर? और ये सारी जब चीजें एनालाइज होंगी और आपने हर लेवल पर कुछ निकाला तो वो डिजाइन स्टेज में मैं डिजाइन क्या करूं। मुझे आज मेरी क्लास, लेट्स टेक इट, मेरी क्लास मैंने 10 बार पूछा, भाई मुझे बताओ क्लास में कौन है, किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनका सिलेबस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे बोल दिया सर आप तो वाइस चांसलर, आपको क्या जाता है, आप जाओ क्लास कंडक्ट करके आओ, जा सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, बोल के आ जाओ, मैं चला जाऊंगा।
लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे जो टारगेट अचीव करना है, जो मेरा गोल है, वो है कि ये स्टूडेंट्स इस क्लास के खत्म होने के बाद ट्रेनिंग नीड एनालिसिस किसे कहते हैं और कैसे करते हैं, अगर ये समझ में नहीं आए तो लानत मेरे पड़े। राइट? तो अब मैं वो गोल हो सकता है 100% अचीव नहीं कर पाया, मैं कितना कर पाया तो वो मेरी गैप है, मेरी परफॉर्मेंस गैप है। आप समझे? मेरी भी गैप होगी ना। तो अगर मैं अपना गोल अचीव कर पाया, वो मुझे कैसे पता लगेगा? उसका एक अलग, उसको बोलते हैं लर्निंग इफेक्टिवनेस मैनेजमेंट। वो हम आज नहीं पढ़े, कल पढ़े, लेकिन आज हमारा है ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, लर्निंग नीड एनालिसिस, ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस कल। तो क्वेश्चन ये है कि मैंने सब एनालाइज किया, मेरा सब डेटा दिया, श्रुति मैडम ने कुछ दिया, दिलीप सर ने कुछ दिया, ऋषिपाल जी ने कुछ दिया, मैंने सब पढ़ा, एनालाइज किया और करके मैंने अपना प्लान बनाया कि मैं क्लास में क्या करूंगा। तो मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई, कुछ मैंने केस स्टडीज बनाई, क्योंकि मुझे लगा कि ये रिलेट करता है टॉपिक से और इस टॉपिक का जो आउटकम है वो अचीव करेगा। मैंने अपना काम किया। ऐसे ही आप करोगे जब आप ट्रेनिंग मैनेजर बनोगे। तो डिजाइन में अब आप क्या करोगे? एनालाइज करोगे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल, डिपार्टमेंट लेवल, इंडिविजुअल लेवल, और गैप्स कहाँ हैं, उन गैप्स को अब कैसे एड्रेस किया जाए, तो उसके लिए कैसा डिजाइन और उसको फिर आगे कैसे डेवलप करें, उसके सॉल्यूशंस कैसे बनाएं। अब जो मैं अभी ये कर रहा हूं ये सॉल्यूशन है। मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई, कुछ केस स्टडीज बनाए और कुछ इंटरैक्टिव बनाए, ये सॉल्यूशन। और इसको मैं अभी इंप्लीमेंट तो कर रहा हूं, लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन का मतलब है कल को मैं इसको इवैल्यूएट भी करूंगा, ये ठीक था कि नहीं था, इससे ऑब्जेक्टिव मीट हुआ कि नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ मैं इवैल्यूएशन के बाद उसमें कोई चेंजेस लाना चाहता हूं तो चेंजेस आके फिर से एनालाइज में जाऊंगा, मैंने कहीं कमी तो नहीं कर दी। हाँ यार, पूरा स्टूडेंट फीडबैक है, वो कहते हैं कि इट इज 60% इफेक्टिव, तो इसको तो कम से कम 90% होना चाहिए। तो मैं वापस जाऊंगा एनालाइज में कि मैंने कमी कहाँ छोड़ी, तो मैं वापस एनालाइज करके फिर डेटा गैदर करूंगा, जब तक कि वो लूप मेरा इंप्रूव नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो ये एक एग्जांपल है। अब देखो, यहां ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करना है कि इंक्रीज ईमेल कन्वर्जन रेट फ्रॉम 3% टू 4%, ये गोल है। जैसे मैंने अभी कहा कि हमने कोई गोल आइडेंटिफाई किया है। अब इस गोल को आइडेंटिफाई किया गया है, अब इस गोल में कौन से बिहेवियर्स और कौन सी नॉलेज और कौन से स्किल मुझे इंपैक्ट करनी है, ये मेरा कैलेंडर बनेगा। जब कल आप मैनेजर बनोगे, ट्रेनिंग मैनेजर, तो आपको भी ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल दिखा रहा हूं मैं। तो इसमें स्किल और नॉलेज कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, इस गैप में, इस जॉब बिहेवियर में, इस गोल में बिहेवियर, नॉलेज और स्किल के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, वो मुझे एनालाइज करके डिजाइन करने हैं। और फिर मुझे प्रायोरिटी देनी है कि किसको कितनी प्रायोरिटी और किस लेवल पर देनी है, और उसके बाद उसमें ट्रेनिंग नीड कहाँ पे हाई है और कहाँ लो है। कोई चीज बिना ट्रेनिंग की कराई जा सकती है। उसको जॉब पे एक्सपोजर दो, उसको शैडो करा दो जॉब, उसको बॉस के साथ 1 महीने का लगा दो। नहीं, इसको बॉस के साथ काम नहीं चलेगा, इसको क्लास में ले जाओ, नहीं इसको वर्कशॉप के अंदर ले जाओ, 6 घंटे की ट्रेनिंग दी उसको, तो वो डिसाइड करेगा। और उसके बाद फिर ट्रेनिंग वो क्लास में लेनी है, ऑनलाइन लेनी है, ऑफलाइन लेनी है, हाइब्रिड देनी है, मशीन पे लेनी है। तो ये आप एक एग्जाम्पल है, ये सामने रखा कि जब आप ये सब करोगे तो इसको फिर आपको ट्रेनिंग डिजाइन फॉर्मेट्स में भी लाना है, प्रेजेंट करना है, और फिर उसको ट्रैक करना है कि मैं इनको पूरा कर रहा हूं कि नहीं। और ये पूरा करने के लिए आपको इसके कैलेंडर्स बनाने पड़ेंगे कि अच्छा ये ट्रेनिंग है, ये इस एरिया को इम्पैक्ट करेगी, ये इस प्रॉब्लम को इम्पैक्ट करेगी, ये इस प्रॉब्लम को इम्पैक्ट करेगी, इसके लिए मैं क्लास में दूंगा, इसके लिए मैं ऑफलाइन दूंगा, इसके लिए मैं ऑनलाइन दूंगा, इसके लिए मैं हाइब्रिड करूंगा। और अब ये ट्रेनिंग जो है अगले 2 दिन, 5 दिन, 5 महीने, 1 साल में उसको कंप्लीट करें, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी, सीवियरिटी एंड नीड। इज इट क्लियर? सो
गो बैक, ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि जब आपको ट्रेनिंग का वर्क फ्लो क्रिएट करना है तो उसमें आप किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि what is more important is that when you are going to someone, for example you go to a boss, you have done your basic study, now you are asking him questions, so you have to be very clear what kind of questions I have to ask. वो questions कहाँ से आएंगे? जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल नीड है, उस नीड को समझने के लिए मुझे क्या क्वेश्चंस पूछने हैं. सो डिजाइनिंग द क्वेश्चनेयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट सिंपली मैं उठा और चला बॉस के पास, बॉस बताओ क्या ट्रेनिंग चाहिए. It's not like that. So that's why I was telling Professor Ishibar, it takes more than 5-6 sessions to really ingrain training. मैंने तो आपको वो टॉप व्यू दिया, नहीं तो हर एक एलिमेंट पे 1-2 दिन लगते हैं. अब सबसे क्रिटिकल स्किल सेट जो एक ट्रेनिंग प्रोफेशनल का है वो है डिजाइनिंग ऑफ क्वेश्चनियर. डिजाइनिंग इट्स लाइक रिसर्च. जैसे हम पीएचडी में रिसर्च करते हैं ना, आपको क्वेश्चन डिजाइन करना है, फिर क्वेश्चन टेस्ट भी करना है, और फिर जब आपको लगता है हाँ दिस इज द राइट क्वेश्चन है, देन अगर वो डिजिटली रोल आउट करना है या फिजिकली रोल आउट करना है, देन आई हैव टू गो एंड गेट द इंफॉर्मेशन. So validation of questionnaire is very important. So going back to our original chart, yeah. Now इसमें बड़ी important चीज है, जब आप डेवलप सोल्यूशन में आते हैं, मान लीजिए हमने कहा कि ये जो हम इंक्रीज ईमेल कन्वर्जन मेरा टारगेट है 3% से 4%, और मैंने सारी ट्रेनिंग एनालिसिस कर ली, अब मेरे पास आ गया सोल्यूशन बन रहा है. सोल्यूशन बनने के लिए ये फेज है डेवलप फेज. ऐसा नहीं कि मैंने सोल्यूशन बना लिया और चलता हूं, आओ भाई अब कल से ट्रेनिंग. द सॉल्यूशंस हैव टू बी वैलिडेटेड बाय द स्टेक होल्डर्स. अगर मैंने कुछ सोल्यूशन बनाया कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 3% से 4% ईमेल कन्वर्जन है, और मैंने अब सारा एनालिसिस कर लिया, सारा डेटा आ गया, मैंने एक सोल्यूशन बना भी दिया, और अब मैं सीधा सोल्यूशन डिलीवर करने नहीं जाऊं. एक अच्छे प्रोफेशनल का काम क्या है, मैं उस सोल्यूशन की टेस्टिंग करूं. मैं उस सोल्यूशन की टेस्टिंग के लिए 2 स्टेप्स फॉलो करूं. एक, जो मैंने डेटा गैदर किया, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई और जो मैंने एनालिसिस करके रिपोर्ट बनाई, मैं वो रिपोर्ट चेक करवाऊंगा पहले बिजनेस से फिर से कि क्या मैंने ये रिपोर्ट सही बनाई है, क्या यही आपकी रिक्वायरमेंट है, क्या यही आपकी प्रॉब्लम है, क्या इस तरह के सोल्यूशंस आप ढूंढ रहे हैं. जब बिजनेस मुझे कहता है यस यू आर राइट मिस्टर नेहरू, दिस इज व्हाट वी नीड, नाउ आई विल गो टू द सोल्यूशन. एंड नंबर 2, व्हेन आई मेक द सोल्यूशन, I will do 2 things. I may involve professionals of that field because I'm not the professional of that field. I will include professionals of that field, and when the solution is made, number 2, I will send the solution for a beta testing. एक टेस्टिंग ग्रुप को बुलाया, इनवाइट किया कि भाई जिसको हम बोलते हैं ना गिनी पिग बोलते हैं नॉर्मली अंग्रेजी में, चलो भाई ये ट्रेनिंग पहले आप पे टेस्ट करते हैं. तो एक सैंपल टेस्टिंग के लिए मैंने एक ग्रुप बुलाया और वो ट्रेनिंग उन पर चले. उनके फीडबैक के आधार पर अगर वो फीडबैक बिल्कुल सही आता है, देन आई विल रोल आउट द ट्रेनिंग. सो यू सी द ट्रेनिंग नीड एनालिसिस कैसे स्टार्ट होती है, कैसे प्रोसेस होती है, कैसे हम डिजाइन करते हैं, एनालाइज करते हैं, और कैसे उसका सोल्यूशन डेवलप करते हैं. तो ये जो सोल्यूशन डेवलप करना है, ये सोल्यूशन डेवलप करने का मतलब अब मैं ट्रेनिंग रोल आउट करना है. यहां तक एक बात है इसका. तो इसलिए आपको मैंने ये भी बताया कि ये इसका फ्रेमवर्क है, ये क्लियर है. Yes, sir. फिर मैंने आपको बताया कि स्टेप्स हैं और टूल्स हैं और रिक्वायरमेंट्स है, सर्टेन थिंग्स जो हम पहले ही डिसाइड करते हैं. फिर हम उसको डेटा गैदर करने के लिए बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, किस फ्रेमवर्क में उसको डालना है, किस तरह की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना है. फिर स्टेज 3 है
कि उन टूल्स के आधार पर उनका जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है कि कल को अगर मुझे देखना है कि ये ट्रेनिंग इफेक्टिव थी कि नहीं थी, इस ट्रेनिंग से वो जो पर्पस था ऑब्जेक्टिव का, जो कंपनी ने आज पैसा लगाया है वो पैसा वापस मिला, बिकॉज आज की डेट में व्हाई शुड सब कंपनी इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग? इट्स अ कॉस्ट. कॉस्ट मीन्स इफ आई एम इन्वेस्टिंग 10 रुपीज, अगर आपको 500 करोड़ की सेल करनी है और आपको 50 लाख रुपया खर्चने हैं, तो 50 लाख तो जेब से जाएंगे ना, तो उस 50 लाख के बदले मिला क्या? तो आप पूछोगे भाई तुमको तो ट्रेनिंग मैनेजर बनाया, मुझे बता 50 लाख रुपए तुमने खर्चे, रिटर्न क्या मिला? वो है फिर लर्निंग इफेक्टिवनेस, वो हम कल करेंगे. लेकिन ये भी आपको याद रखना है, आप खाली ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करके ट्रेनिंग बना के ट्रेनिंग चला दिया, इससे काम नहीं चलेगा. ये हमारे एकेडमिक वर्ल्ड में चलता है, ये हो सोल्यूशन हो गया. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सोल्यूशन इज लिंक्ड टू ROIs. Solution is linked to effectiveness, whether it has impacted, and impacted in a prove it that it has impacted. Why should I budget you every year? So that is one part, and then फिर आपका ट्रेनिंग प्लान बनता है, वो आपका मंथली, वीकली, एनुअली एक ट्रेनिंग प्लान बनता है, इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्लान बनता है. इसके लिए भी टूल्स है और ये मैंने आपको बता दिया. बट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, ये हम कल पढ़ेंगे, which is about the training evaluation. तो आज हम नहीं करेंगे, but remember training evaluation is fundamentally important. So I'm stopping here for you to help me understand whether you have understood training need analysis.